Hello, good morning, all students. Today we discuss last topic. We discussed the addition of fraction and subtraction of fraction. In a mathematics, we have four operations: addition, subtraction, multiplication, and division. Today we discuss. We are discuss only two topics. We discuss two topics, just like the addition of fraction and subtraction of fraction. Next one, we today discuss multiplication in fraction. Multiplication in fraction. Multiplication fraction, and in the mathematics two name product, also called multiplication is product of fraction. Both are same word. The symbol of multiplication is, you know very well, multiply, cross. Now we discussed about the first example, 5 upon 10 multiply 8 upon 9. First, how to solve this? The both are proper fraction. Now, numerator multiply by numerator. The rules of product of any two fractions, that means denominator multiply denominator. That means 5 multiply 8 and 10 multiply 5 multiply 8 and 10 multiply 9. Why? 5 is first term numerator, 8 in second term numerator, 10 is first term denominator, and 9 is second term denominator. So 5 8s are 40 and 10 9s are 9. That is find out of a proper fraction. Why proper fraction? So denominator is greater than numerator. Now second one of a multiply of this term is 4 upon 5 multiply 7 upon 6 multiply 2 upon 4. How many terms? 3 terms. How to solve this? That's every question have a fixed method to solve this. तो इसमें भी सब जगह मल्टीप्लाई का साइन है, तो यहाँ पे भी वही प्रोसेस फॉलो होगी. न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4. then solve this. तो फर्स्टली टू टर्म्स का, देन सेकंड मल्टीप्लाई करेंगे 4 मल्टीप्लाई 7 28 मल्टीप्लाई 2 upon 5 मल्टीप्लाई 6 30 मल्टीप्लाई 4. Clear? Then again 28 multiply 2, how many? 56. Or 30 multiply 4, 120. That's also proper fraction. Why proper fraction? Proper fraction की definition आप clearly आपके दिमाग में clear है? Now, this is the question of how to multiply in a fraction. So both are simple method is we are just multiply of numerator in numerator and denominator in denominator. जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका दिखे, दो फ्रैक्शन के अंदर अगर मल्टीप्लाई का साइन है या फिर इसकी जगह अगर आपके यूं होता 4/5 ब्रैकेट 7/5, तो बोथ आर सेम, ब्रैकेट भी मल्टीप्लाई को भी शो करता, तो इसका भी क्या होता, वही शो होता है 4 मल्टीप्लाई 7 एंड upon 5 multiply 5, 28 upon 25. Now we discuss about last operation of mathematics, division in a fraction. Next topic is division in a fraction. Division in a fraction. नेक्स्ट टॉपिक है अपना
डिवीजन इन फ्रैक्शन। लास्ट वन टॉपिक है अपना डिवीजन इन फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन में मैं डिवाइड कैसे करूं। नाउ एक एग्जांपल लेते हैं 4/5 divided by 8/20. Both are fraction. First fraction 4/5, second fraction 8/25. Now 4/5, 8/25 both are different fraction. Now how to solve this? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शन के अंदर डिवाइडेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नाउ हाउ टू सॉल्व दिस 4/5 जो फर्स्ट टर्म है उसको एज इट इज रखना है। और जब हम जो ये डिवाइड वाला साइन है उसको चेंज करेंगे, डिवाइड के साइन को सेकेंड स्टेप अपनी है डिवाइड के साइन को चेंज करेंगे तो सेकेंड टर्म है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। इसका मींस रेसिप्रोकल का दैट मींस 25 है जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा तो 25 ऊपर चला जाएगा और ये तो यहाँ एक रूल्स में डाल सकते हो व्हेन वी चेंज द साइन of dividation into multiplication, then reciprocal of second fraction। सिंपल सा प्रोसेस है कि जब भी मैं डिवाइड वाला साइन को चेंज करूंगा, अब मुझे डिवाइड वाला साइन चेंज नहीं करूं तो मैं मल्टीप्लाई कर नहीं सकता, तो इसको डिवाइड के साइन को चेंज करने के लिए जो सेकंड वाली टर्म होती है जो डिवाइड पीछे वाली टर्म होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सीधी सी बात है 4/5 जैसे मल्टीप्लाई का साइन है तो वही पहले वाला मेथड न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई 4 × 25 और 5 × 8। देन यू नो हाउ टू जब एक ही न्यूमरेटर के अंदर और डिनोमिनेटर के अंदर ऐसा टर्म हो जिसमें कॉमन फैक्टर हो दैट मींस कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं। 4 की टेबल में 8 कितनी टाइम बनता है 4 × 4 और 4 × 8 तो इसको काट भी सकते हैं, काट कर सकते हैं अपन 5 × 5 और 5 × 5 5 25 तो ऊपर क्या बचा अपने पास 1 × 5 और ये 1 × 2 दैट मींस दिस इम्प्लाई दिस इक्वल टू 5/5 1 to the 2 then 5/2 और इसको मैं चेंज करूंगा मैं एक्सप्रेशन के अंदर 2 1/2। इसको मैंने क्यों चेंज किया न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर देने डिनोमिनेटर के दैट मींस ये फ्रैक्शन जो हुआ मेरा वो हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को अपन किसमें चेंज करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दैट इज आवर आंसर। और डिवीजन का एक और क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे उसके बाद आपका आज का एलडब्ल्यू दिया जाएगा। आई थिंक फ्रैक्शन का ये लास्ट टॉपिक हो सकता है क्योंकि अपने ने 4 ऑपरेशन सॉल्व कर दिए, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज सॉल्व कर दी। फ्रैक्शन का ये लास्ट टॉपिक हो सकता है क्योंकि अपने ने फ्रैक्शन से रिलेटेड सभी चीजें मैथमेटिक्स के 4 ऑपरेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन सीख लिया है, फ्रैक्शन की प्रॉपर्टीज सीख ली है, प्रॉपर इम्प्रॉपर और मिक्स फ्रैक्शन बनाने कैसे हैं, सोल्व कैसे करना है। नाउ लास्ट वन एक और एग्जांपल करते हैं अपन 4/15 नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 7/15 डिवाइडेशन बाय 49/49 सेम कंडीशन सॉल्यूशन 7/15 as it is मल्टीप्लाई डिवाइड का साइन चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में तो 45 कहां चला जाएगा ऊपर और 49 नीचे
Now why process numerator में numerator का multiply 7 multiply 45 और 15 multiply 49 both are common multiple 7 1 multiply 7 1 7 7 7 is 49 15 1 15 15 is 45 now answer is 3 by 7 complete I think division in a fraction आपको समझ में आ गया now HW for today we discuss multiplication and division what first question 14 upon 20 into 17 upon 30 multiply 10 upon 20 second one 8 upon 9 multiply 4 upon 7 multiply 8 upon 9 so that's common 18 upon 9 next one third 5 by 7 15 by 17 multiply 18 by 21 ये क्वेश्चन करना आपको दैट मींस नेक्स्ट क्वेश्चन डिवीजन से रिलेटेड होगा 5 by 7 डिवीजन by 15 upon 35 next one 101 upon 14 that means division by 202 upon 56 division क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन हो गया आपके 49 multiply or divide 7 इक्वल हो जाएगा 42 इसको सॉल्व करना 6 क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर सॉल्व करने हैं राइट डाउन करने हैं और सॉल्व कर देना आपको नाउ टुडेज का क्लास कंप्लीटेड थैंक यू